Okay, hello everyone. So my name is Vishal, and I'm going to show you a web application, vulnerable web applications, how to install it in your environment, or how to do practice on web application. Okay, so here is some images. Let's see. One of that is that. Actually, I uploaded it on my Docker. How to that I copy some codes from other developers also. So this part is not totally done by me. Okay. Web application testing labs you can use from these bad images. How to use this image? You can directly copy this Docker and on hyphen D. Hyphen D is detached. Hyphen P means the port number which you are going to start in a Docker image. And after that, 80 it is what it means you hosting it outside, okay, on port number 80. So it's up to you which port number you want to keep in internal Docker or external access करने के लिए. Hack sudo slash vat colon latest is tag vat latest is a tag. The hack sudo is a user. So this is a user and vat is a repository or image, can call it a image. Okay, right. So this is just command. So if you want to pull this image, you can directly type a docker pull and hacksudo slash vat. So before we type this docker pull hacksudo vat, need to install docker. Okay, so I don't have like AMD64. So for that I use Google console. Here is my Google console. Okay, and so basically start from apt install and sorry, it's a apt install docker.io. Okay, this is your docker.io is nothing but your platform where you are going to install or start your image. So if you already successfully installed this, then next command is docker pull and that image name. What actually this image is doing? Let move to the GitHub. And Haxula. Okay. Here it is. So this is the web applications, and it is actually owned by the One Lab. Okay, so One Lab is one of developer, and this is customizable vulnerable lab setup designed for for penetration testing and security emphasis and educates to practice and to learn about the various security vulnerabilities in the control environment. Okay. So you can start your own labs using the Docker. Just one click and start a lab. Simple. It's easy to install. And yes, so how to start a lab? Here I just keep some steps. यहाँ पे मैंने रखा है requirement क्या है, what is the requirement, basic understanding का Docker की थोड़ी आपको होना जरूरी है. And how to start it? Command is chmod. So once you download .sh file, then that sh file is is nothing but a bash scripting. And what I type here is steps. If you not install docker.io, then first need to update your system, then install a docker.io. Later, then download image from just type the docker and pull and hacksudo slash vat. So once you install image, then you can start a lab at the port number 8080. Okay. So for that, this is the command, enter command. Okay. Again, I'm telling you that it's up to you which port you want to start. For practice, you can keep it at it as it is 8080.
else you can change it. Sometime what happen, you already started up, if you started Apache services, that occupy your port 80, so you cannot start Docker image on the port 80. Okay, this port. So you need to do some changes while you fire these commands on terminal. So make sure that your Edge report is not already not started. Later, see. Let me copy this and let me open my terminal. Okay, Google. Okay, let's see this. Dogger run hyperdp and start. So what's happening here? I already started. See, already located the port number 80, so I'm not able to start it again. For that, I need to kill the process and then we'll need to start it again. Okay, so it's okay, not necessary to kill this and start again and again. So it's better to know that, see, मैंने यहाँ पे docker type किया, ps type किया, तो definitely it's showing me like current process कौन सा चल रहा है in docker. So it's showing me that images container ID is what? This is the container ID. The image is /part. Okay, and that image is created before 10 minutes. Okay, and the port and started on the port number 8080. See, the one add-on or the plus point is what when I'm using cloud like Google Shell. So it helped me to do whatever I want on cloud. Even it is not utilize my system space and not necessary to use Kali as well. So I can do it on mobile, on the browser also. Actually, it's a browser. Okay, right. So now, if I am using a normal CLI mode on the cloud or on the web, how can I access it on browser or web testing? Okay, even if you use the Google console, तो आपको जो आईपी मिलता है वो आईपी एक्सेसिबल नहीं रहता बाहर के लिए, so कैन नॉट एक्सेस दिस सर्विसेज और आई कैन नॉट एक्सेस इट ऑन द ब्राउजर. तो मुझे क्या करना है, सिंपली जस्ट गो टू द ओपन दिस वेबसाइट localhost.run and there is another website also like Servio. पता नहीं वो चल रहा है कि नहीं, .net I don't know. डाउन है, ठीक है, कोई बात नहीं. Servio.net I guess डाउन है. Okay, कोई बात नहीं. तो ये दोनों वेबसाइट is used for to do port tunneling. Okay, so here is the command for start the port 80 port. हम लोग क्या करेंगे, बाहर के लिए एक्सेस करेंगे. ठीक है, तो मैंने करना है ये कॉपी and let's open my shell again. Okay, and paste that command. Yeah, do one thing, what, make sure कि like यहाँ पे 8080 ही होना चाहिए. Okay, 80 this 80 is denoting my port number which I started in a Docker, and this 80 it means what on which port number you want to access it for the outside के लिए. तो मैंने एंटर किया, SSH tunneling started and it give me a URL, this URL. So this URL is nothing but my whatever I just started the images on the port number 80, that web applications will be started over here in my Google console, but I'm not able to access it because I don't have IP address. Now I just encrypted IP. It means what happened here, I just tunnel out the port number 80 outside using this URL. So just copy this and send it to your friend, or you can type it in browser. Let's open it in browser. Wow, boom. So now what happened here, I can access my web applications here as well. Okay, so one lab, final. Okay, so यहाँ पे कुछ labs है, like XSS के labs है, IDOR के labs है, XXE के labs है, unrestricted file uploading की labs है, insecure deserializations की है, REST condition है, API है, path traversal है, SQL injection है. So मैं आपको एक दिखाता हूँ. Even if you don't know how to solve this, it is okay if you know
तो आप जाके आप कास्टली यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हो। बेसिक रिफ्लेक्ट लैब है यहाँ पे। तो ये आपको एक बेसिक का आपको एक पेज दिया जाएगा। Here you can type your XSS payloads, script, alert, and close it script को। तो ये आपको पॉपअप मिल रहा है। ओके, तो ये कुछ लैब्स है। ओके, तो वो लैब्स आप लोग यूज कर सकते हो। बेसिक स्टोर्ड है, बेसिक डॉम बेस है, एचटीएमएल एट्रीब्यूट मैनिपुलेशंस है, एंड गैलरी के लिए भी है। गैलरी मींस इमेज के थ्रू एक्सेस हम लोग ऐसे स्क्रिप्ट करते हैं। यूजर एजेंट इज मीन सॉर्ट लाइक व्हेन यू सेंड इन द रिक्वेस्ट, तो जो वेबसाइट में हम लोग इन रिक्वेस्ट को इन कैप्चर करते हैं, देयर यू कैन सी a user agent. So just there is a vulnerability also, which can help you to do access vulnerability. तो अपलोड फाइल का भी यहाँ पे यूज करके हम लोग vulnerability एग्जीक्यूट करते हैं। Find a way to trigger the access by upload file, okay? और so many things क्या। Even source of learning का भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। There are 4 links to learn access कैसे करते हैं। Again, हम लोग वापस मेन पेज पे आते हैं। आईडोर का भी 7 लैब दिए है। You can learn how to execute IDOR, how to find the IDOR vulnerabilities on web applications. इनवॉइस के ऊपर भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। सपोज अगेन अनऑथराइज्ड, सी लैब का नाम क्या है, gain unauthorized access to the other users invoice. So what happened here, you are on a new invoice. So if I click on the view button, my invoice will be displayed here, but in URL invoice ID is 1. So what if I change UID number, then the user invoice will be displayed here. So what happened here, I can access other users के invoice. All right, this is also come under the IDOR vulnerability. Okay, like that. So here what you can done कि like invoice का through invoice in the case like a document, ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हम लोग दूसरे के ऑब्जेक्ट्स अनऑथराइज्ड कैसे एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट IDOR vulnerability. Or even one more challenge is what ticket sales. Buy a ticket for the less than a regular price. So how to do this using the bug suit? You can manipulate it. It is actually you can do the intersect this request and do some changes in bug suit. तो वहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस करके ये सब चीजें कर सकते हैं। इफ यू डोंट नो क्या मतलब ये कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ hacksudo.medium.com एंड ये पे मैं टाइप करता हूँ IDOR हाउ टू फाइंड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो पब्लिकली सर्च हो रहा है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, बैक चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। One lab inclusion, file inclusion command, API, SQL, unrestricted file, access, IDOR। सी यहाँ पे IDOR के बारे में एक राइटअप है। तो राइटअप में क्या है, यहाँ पे इंस्टॉल कैसे करना है वो दिया है, मैनुअल इंस्टॉलेशन भी दिया है। ओके, हाँ देखो यहाँ पे शेयर एक्सेस कैसे लेना वो भी मैंने दिया है, इवन लिंक भी दी है। इवन एसएसएल सर्वी डॉट नहीं, अच्छा यही है अपना लोकल होस्ट का ही दिया है। नाइस। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है व्हाट इज IDOR, हाउ IDOR एक्चुअली वर्क। तो IDOR का आपका ये इनवॉइस वाला जो है वो एक एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट्स एंड लैब्स एक्चुअली स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे नीचे। तो इनवॉइस वाला है, सेकेंड हम लोग देखेंगे तो हाँ ये वाला सेकेंड का है। यहाँ से स्टार्ट हो टिकट सेल्स का। टिकट सेल्स कैसे करना है, 10 rupees, the ticket price is $10 and amount of your wallet is $100,000 $1,000. So when you purchase one ticket, $10 will be deducted in your account
ओके, तो वहां पे अब ऑप्शन पे व्हेन यू इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अमाउंट 10 rupees and ticket money is 10. So basically what happened here, it's showing you in everything in a body. So you can remove that tickets का money का amount 10 to 1 कर सकते हो, और अमाउंट भी आपको जितना भी चाहिए वो उतना लिख सकते हो, या टिकट मनी कितना करेंगे हम लोग 100 कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ मनी इज 1 rupees रखो, and send that request. If it is successful done, then yes, obviously we don't need that. तो अमाउंट 100 किया है, टिकट का मनी 0 किया है, तो टिकट 100 है और टिकट का मनी 0 है, तो टिकट 100 टिकट विल बी सक्सेसफुली अप्लाइड, एंड विद इन 0 rupees में हम लोग वो परचेस कर लेते हैं। देखो, मनी यू पे इज 0 एंड टिकट्स यू बाय इज व्हाट, हाउ मेनी 100, सॉरी 10, माफ लीजिए। तो ये सब चीजें हम लोग आइड्रो के अंदर दे सकते हैं। चेंजिंग पासवर्ड, changing another user's password without permission. See, CSR vulnerability is what if you triggered चेंज वाला रिक्वेस्ट हम लोग CSRF में ये करते हैं, सामने वाले बंदे को सेंड करते हैं, व्हेन ही क्लिक देन उसका पासवर्ड चेंज हो जाता है। फॉर दैट क्लाइंट मस्ट बी, या विक्टिम जो होता है वो दैट मस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस अटैक्स। But in hydro vulnerability, not necessary that client or victim must be in that attack. तो हाइड्रो वल्नरेबिलिटी हम लोग एक्सेस करते हैं, पासवर्ड चेंज करते हैं एंड वो हो जाता है पासवर्ड चेंज। तो इफ पासवर्ड चेंज होता है, इफ व्हाटएवर द मॉडिफिकेशन इज हैपन, व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस दैट कम अंडर द हाइड्रो वल्नरेबिलिटी, सिंपल। ओके, तो वो जो है रिक्वेस्ट में प्रॉपरली देखना है कि क्या यहाँ पे यूजर्स की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है, क्या क्या कैन वी मैनिपुलेट द यूजर इंफॉर्मेशन, इफ यस देन let me try, you can try it. So basically here पर you just changing the password as admin and the user ID is 1. So if we change the user ID 1 to 2 and 3 and 4, that particular user ID का password will be changed. Okay, right, like that. So here password change for user, other user. Similarly, you can transfer the money as well. अब मैं ऑल यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे हैक छोड़ो के मीडियम के ऊपर रखे, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर एग्जीक्यूटिंग इट। हियर आई ऑलरेडी नो टेलिंग यू कि लाइक यहाँ पे आप लैब को सेटअप कर सकते हो डॉकर का यूज करके। ये लैब भी मैं आपको एक्सेस करने के लिए दे रहा हूँ, जस्ट गो एंड लर्न करो, चीजें समझ जाएगी आप। वैसे यहाँ पे नीचे एड्रेस एंट्रीज के अंदर भी हाइड्रो वल्नरेबिलिटी है, अबाउट के अंदर प्रोफाइल चेंज करते हैं तो तभी भी हाइड्रो वल्नरेबिलिटी आपको मिलती है, इवन कुछ परचेस करते हो तभी हाइड्रो वल्नरेबिलिटी यहाँ पे मिलती है। जब मैं यहाँ पे प्रोफाइल को चेंज करता हूँ तो मेरे प्रोफाइल चेंज हो जाता है। कोई बात नहीं, जो भी है सोर्स कोड हम लोग देख सकते हैं। टनलिंग इशू, सॉरी मैथोलॉजी, यहाँ पे क्लाउड पे कुछ तो इशू आ गया ऊपर से। कंट्रोल सी, अगेन स्टार्ट, ओके एंड ओपन। ओके चलो ठीक है। हाइड्रो देखो यहाँ पे 7 लैब्स है, गो हेड एंड try to exploit hydro vulnerability. XML entity is also very nice, I love it. एक ही लैब है, मैं ट्राई करूंगा एक नया vulnerabilities का लैब बना के वहाँ पे XML API का URL poisoning अच्छा मैं भूल रहा हूँ कुछ चीजें, तो जो मुझे नए नए लगता है वो सबको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, पार्ट ट्रैवर्सर भी यहाँ पे कुछ कम ही लैब से उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, कोर वल्नरेबिलिटी आल्सो उसे भी ऐड कर लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो एक्सएमएल एक्सटर्नल फाइल एक्सट्रैक्शंस, ये जो लैब है इसका भी आई गेस आर्टिकल आपको मिल जाएगा। ये कौन सा है, आई डोंट हैव एक्सेस। ओके, एक्सएमएल इंटरफेस, ये जो है ये लैब में भी हम लोग देख सकते हैं क्या क्या होता है।
एंड ये पेलोड से एक्सएमएल एंटिटीज के गेटअप के ऊपर, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट। तो ये जो पेलोड है, वो पेलोड हम लोग उठा सकते हैं बेसिक एक्सएमएल एंटिटीज पर, बहुत सारे हैं। फाइल डिस्क्लोज हो रही है यहाँ पे, कौन सा फाइल डिस्क्लोज कर रहा है, इट्स अप टू यू कि आप, अच्छा वहाँ पे एलएफ वल्नरेबिलिटीज होगी तो हम लोग कोई भी फाइल डिस्क्लोज कर सकते हैं। डिडॉस अटैक के लिए ये वाला पेलोड हम लोग यूज कर सकते हैं, लोकल फाइल इंक्लूजन के लिए ये वाला है ना। So many payloads is here. Use one of that. Try to execute it, and yeah, if it is executing, it means what XML vulnerability is there, right? Simple. तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। इवन XML के बाद हम लोग देख सकते हैं फाइल अनरिस्ट्रिक्टेड फाइल के 5 लाभ है। अपलोड और डिस अलाउड फाइल टाइप्स, मतलब जो कि अलाउ नहीं है वो फाइल भी हम लोग अपलोड कर। देखो अलाउड फाइल इज लाइक GIF, PGPG, PNG एंड PNG, GPG, GPG, PNG, GPEG। ओके, तो इतने ही हमारे पास अलाउड फॉर्मेट अपलोडिंग के लिए है। बट इससे कुछ अलग एक्सटेंशन लाइक PHP हो या पाइथन हो या हमारा एपीआई मतलब डॉटनेट के फाइल एपेक्स एंड ऑल, वो फाइल अपलोड करनी हो कि PHP HTML है, pfar है, बहुत सारे एक्सटेंशन फाइल्स होती है which is used to for getting access, shared access, एग्जीक्यूटेबल फाइल हम बोल सकते हो उसको, वो हम लोग अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे अलाउड नहीं है वो फाइल को, बट स्टिल वी कैन। तो वो कैसे करना है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अपलोडिंग का कर रहा है, ओके दिस वन यहाँ पे है। तो एक छोटा सा वेब शेल हम लोगों ने एक वेरिएबल सेट किया CMT, तो एक PHP फाइल हम लोग बना लेंगे और उस PHP फाइल में हम लोग एक कोड डाल देंगे, ठीक है। अपलोडिंग एग्जीक्यूटेबल्स, तो वो तो एग्जीक्यूटेबल PHP मतलब एग्जीक्यूटेबल है, मालवेयर हम लोग उसको बोल सकते हैं। सो अपलोडिंग करने के बाद देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, नॉर्मली हम लोग पेज पे अपलोड नहीं कर पाते, तो यहाँ पे अच्छा फर्स्ट लैप पे अपलोड नॉर्मली हो रहा है, कोई बात नहीं, एक्सेसिबल नहीं है तो भी वो अपलोड हो रहा है। अपलोड MIME टाइप्स, अपलोडिंग डिसअलाउड फाइल टाइप्स, तो फाइल का टाइप्स डिसअलाउ है तो हमें उसे बाईपास करना है, तो बाईपास कैसे करें, तो यहाँ पे अलाउ नहीं है तो बाईपास कैसे करें। यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं फाइल टाइप्स क्या है, एप्लीकेशन XPHP, तो जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं that's nothing but your PHP code, okay, so that's why it is not allowed to। but if you change the file का content का type image GPG, तो शायद वो अपलोड हो सकता है, ऐसा हो गया। जैसे MIME टाइप्स बोलते हैं, magic header also like uploading a disallowed file types and bypassing the magic header। तो सी तो अब फाइल हम लोग अपलोड करते हैं, बट यहाँ पे कंटेंट्स के ऊपर जो हमारा फाइल है पेज पे हम लोग इंटरसेप्ट करते हैं, देन बिफोर दैट हमें GIF 8689 ए ऐड करना होता है, ये इसको हम लोग मैजिक हेडर बोलते हैं, ठीक है। ये भी बाईपास करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आएगा ब्लैक लिस्ट, तो बहुत सारे कंटेंट्स ब्लैक लिस्टेड होता है, जब ब्लैक लिस्ट होगा तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग फाइल को अपलोड ही नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे टेम्परिंग करना पड़ता है। टेम्परिंग इन द सेंस लाइक देखो यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज करते हैं, अपलोड करते हैं फाइल लाइक PHP 3 या उसका एक्सटेंशन चेंज करके, बट एक्सटेंशन चेंज अब यहाँ पे आने के बाद हमें उसे एक्सटेंशन को ट्राई करना है, अपलोड होने के बाद एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। अदरवाइज यहाँ पे फाइल टेम्परिंग करके, डेटा टेम्परिंग या फाइल टेम्परिंग बोलते हैं उसे करके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को अपलोड करना पड़ता है, तो वो होता है कभी कभी, कभी कभी नहीं होता है, डिपेंडिंग हमें वो चेक करना पड़ता है। ब्लैक लिस्टेड 2 में भी वहाँ पे भी अभी नो
एक्सप्लोरर, बहुत सारी चीजें दी है। तो ये सब है, अलाउड एंड डिसअलाउड एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपलोडिंग के बाद इनसिक्योर डिसअलाउशन है 5 रेस कंडीशन ऑल्सो। रेस कंडीशन तो बहुत अच्छी है, 2 ही लैब है तो उसमें हमें ऐड करना चाहिए था। कैप्चा बाईपासिंग का भी यहाँ पे लैब है, 2 लैब है। एसएसटीआई का भी लैब है, एसएसटीआई सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शंस, जहाँ पे एसएसटीआई का मैंने आई थिंक सो एसएसटीआई का नहीं आर्टिकल डाला है, बट हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। और लिब्रा के एसएसटीआई का आप गूगल से पेलुट्स उठा सकते हो, पता नहीं वर्क होगा कि नहीं। हाँ ठीक है, तो गूगल से हम लोग ट्राई करते हैं एस एस टी। पहले तो मेरे आर्टिकल्स पे है क्या वो देखता हूँ। एस एस टी नहीं है, कोई बात नहीं। गिटहब पे ट्राई करते हैं एस एस टी आई। ओके, सबके सब में कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट। कोई तो उसमें से एक और होगा। कोई भी वर्क नहीं हुआ क्या? टाटा 7 into 7 49। वाओ, तो एकदम नॉनसेंस यहाँ पे मैंने है ना काम किया। एकदम बेसिक लेवल का हमें यहाँ पे पेलोड यूज करना था, वो छोड़ के मैं कॉम्प्लिकेटेड ट्राई कर रहा हूँ। इट इज ओके, तो गलतियां होती है, छोटी मोटी गलतियां होती है, तो उसको इग्नोर करना है। सी एसएसटीआई क्या होता है वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे तो लैब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लैब सॉल्व कर रहे हैं, बट बेसिक ही नहीं पता तो हम उसे लैब को सॉल्व करके फायदा क्या है ना। इसलिए हमें यहाँ पे कुछ सोर्सेस दिए हैं। जस्ट गो टू द ओपन सोर्स एंड लर्न थिंग्स। नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमें एस एस टी आई चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हैं हम लोग, ठीक है। चैट जीपीटी में जाते हैं, चैट जीपीटी एस एस टी आई vulnerability स्पेलिंग के ऊपर मत जाओ, एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन है। इट इज अ वेब सिक्योरिटी vulnerability that occur when user input is unsafely embedded into the server side template. If a web application use templating like in chain, like Chincha 2 for Python, okay, and Java and PHP and Vim. So directly including user input in a template without proper sanitizations, and attackers might be able to inject malicious expressions. Okay. शायद मेरा फोन बहुत दूर था, पता नहीं मेरा ऑडियो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं। मैं बोल रहा मेरा ऑडियो जो है कनेक्टेड है फोन को। यस, शायद ऑडियो का इशू आया होगा। Okay, so what is the template injections or engine? See, यहाँ पे हम template engine जो होता है is used to generating HTML dynamically by inserting a variables or the logic into the template. For example, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं template is equal to hello
और जो भी हम लोग यहाँ पे नाम हेलो डालेंगे वो रेंडर होगा, लाइक है ना। सेकंड क्या होगा, सेकंड हम लोग कुछ असाइन करते हैं नेम को एलिस, तो उसका आउटपुट हेलो एलिस ऐसा कुछ तो होगा। तो ये लॉजिक है, कोडिंग का लॉजिक है, तो वो लॉजिक जिसको आता है, कोडिंग जिसको आती है, दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या चल रहा है। 7 into 7 जो होता है वो 49 आता है, तो हम लोग ने टेम्पलेट इस तरह से डिजाइन किया है कि हेलो एंड ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, उसका आंसर 49 आ रहा है। तो इफ इन केस ये सब चीजें हो रही है, इट मीन्स वो हमारे जो लॉजिक्स है वो यहाँ पे वर्क हो रहा है, एंड हमारा कोड भी इंजेक्ट हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दैट 7 by 7 एंड कोड टैग, हम लोग कुछ इस तरह के पेलोड्स इंजेक्ट कर सकते हैं विच हेल्प यू टू डंप योर डेटाबेस। ओके, even it can help you to read a arbitrary file as well। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ आर्बिट्ररी फाइल करने का, हो रहा है तो कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। क्लास नहीं हुआ, ओके ओके। तो चार जीपीटी को ही पूछ लेते हैं ना, पेलोड्स दे दो बाबा। ये कुछ पेलोड दिया है, लेट मी ट्राई दिस पेलोड्स हियर। Yes, it is work, I guess, but no, it's giving me output. All right, payload please, है ना। अच्छा, ये वाला पेलोड वर्क हो रहा है क्या, देखते हैं, लेट्स सी। ना, वेरिएबल सेट नहीं कर रहा है वो। इस तरह से हम लोग ट्राई करके देखते हैं। ओके, नॉट वर्किंग, तो वो सिर्फ इस यही टैग ले रहा है शायद। ओके, वेरी गुड, गुड। से क्लोज करते हैं, ठीक है। लेट मी ट्राई। अरे बाबा, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं, सबमिट, नॉट वर्किंग, ठीक है। तो ये टैग कुछ काम नहीं आ रहा है। The include function will not work like this, but still let me try. एरर तो दिया है, but पता नहीं क्या है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है यहाँ तक, ओके। सी हम लोग वापस से ऊपर जाते हैं फटाक से, लैब पे, कहाँ पे थे हम लोग। आजकल के भी 5 लैब है, कमांड इंजेक्शंस के भी 4 लैब है। Sending the ping and sending to stock control भी है। ping मतलब 127.0.0.1 को ping करता है, let's see। Yes, it is pinging, okay। So what if I type here pipe and less?
Wow, output data means what happened here? I can do command injection. Can etc. सुपर ग्रेट। तो इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं कमांड इंजेक्शन कैसे करना है। अच्छा, अगेन यहाँ पे अगेन आपको एक क्वेश्चन है कि बाबा ये मुझे कमांड इंजेक्शन पता ही नहीं क्या है। तो सिंपली गूगल करो, है ना, कमांड इंजेक्शन क्या होता है, ओएस कमांड इंजेक्शन क्या होता है, क्या उसको हम बोल सकते हैं ओएस कमांड एग्जीक्यूशंस भी बोलते हैं। बहुत 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 सारे नाम है हर एक वल्नरेबिलिटीज को। ओके, यहाँ पे हम लोग जाके कमांड इंजेक्शन क्या देख सकते हैं, ओएस कमांड इंजेक्शन क्या है वो देख सकते हैं। हैकिंग प्लानिंग है, हैक्ट्रिक्स है, नो नेक्स्ट पार्कर है, तो हैक्ट्रिक पे जाके देख लो। सी नॉट ओनली द लाइक सम टाइम व्हाट हैपन, वहां पे कुछ अलग ही पैरामीटर्स होता है, वहां पे कैसे ट्राई करना है। आईपी चेक के लिए ये दोनों है वल्नरेबिलिटी, बट यहाँ पे एक स्टॉक कंट्रोल के लिए भी है, स्टॉक कंट्रोल। सो व्हाट इज स्टॉक कंट्रोल? सी कभी हम लोग वेबसाइट्स को विजिट करते, लाइक यू नो ई कॉमर्स वेबसाइट, एंड वे चेकिंग की लाइक वहाँ पे दिखाता है कि देर आर ओनली 4 stocks remaining. If you want to buy, just click on the buy button and add it by your card and buy it fast. Otherwise, stock is limited like that. So if you're checking it, what happened here? At same time, it is checking, synchronizing it with you know उनका warehouse में, and if the warehouse there are 13 pieces of apple, then it will be directly synchronized to the web applications and showing you 13 pieces only apple के remaining है। Okay, so ये real life दिखा रहा है। So for that it taking the commands from web application and injecting it on anywhere might be web applications के सर्वर पे हो रहा होगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो आईडी नंबर 1 है वो एप्पल के लिए, एंड बनाना के लिए 2, एंड फॉर यू नो कीवी के लिए 3 समथिंग, राइट। व्हाट इफ आई ट्राई हियर पाइप एंड या सेमीकोलन, एंड इफ यू ट्राई टू टाइप हियर आईडी, वाओ, so that id command is actually display here. What if I type here pipe? हाँ, पाइप ऑल्सो वर्किंग, गुड गुड। तो इस तरह से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब भी यहाँ पे किसी ने सोचा भी नहीं होगा अरे आईडी इक्वल टू 2 के बाद हम लोग कम्युनिकेशन ट्राई करेंगे। मोस्ट ऑफ पीपल सपोज दिस इज एसक्यूएल vulnerability, let me try to do it on let me try to find the SQL vulnerability using SQL map and so on, like वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, SQL होता है, LFI भी कभी कभी ट्राई करते हैं, वो होता नहीं LFI, बट बहुत सारी चीजें वो ट्राई करते हैं, बट और इसका कमांड इंजेक्शन नहीं ट्राई करते हैं। देखो मैंने लिंक गया सिस्टम का इशारा में, गूगल को भी ना बहुत रोता रहता है। ओके, तो ये कमांड है फाइल इंक्लूजन आल्सो, यार फाइल इंक्लूजन तो इजी है ना, लाइक जर्मनी लैंग्वेज में सिलेक्ट करता हूँ व्हाट इज द कैपिटल जर्मनी, but at same time in URL the parameter in this parameter country is equal to German.php. If I select North Korea and enter, file will be North Korea.php. So what happened here? It is taking the file and showing in a URL. So it's not properly sanitized or not routed in URL. This is called, if you routed this URL properly, then it must not show you equal to and file. What if it is not sanitized properly, not whitelisted or not blacklisted? Then what else? So we'll try to find or read the passwd file also. If it is showing me here, then this vulnerability is called the LFA vulnerability. Okay, what must be here? The mitigations is if in case if anybody try to read any further except
फ्रेंच, जर्मन और तुर्की एंड चटकी में 4-5 फाइल में से छोड़ के कोई और फाइल ट्राई करता है कोई भी और टाइप करके ओपन करने का, देन दैट विल बी नॉट अलाउड. Okay, so here must be 5 files only whitelisted. Other files must be not. So if I check codes in source code में जाके, see, उन लोगों ने ऐसा कुछ white listing नहीं किया है, PHP कोडिंग है बेसिकली. तो वो लोग यहाँ पे फ्रेंच, जर्मन ये सब दिखा रहे हैं. वो दिस इज कॉल्ड इंक्लूड फंक्शन. ठीक है, देखो यहाँ पे इंक्लूड फंक्शन में क्या किया ना, पेज इक्वल टू पेज इज दिस सेट द पेज एज अ वेरिएबल. तो कंट्री से वो एक फाइल है एक्चुअली, तो वो एक vulnerability है. दिस vulnerability must be not GR. This is the vulnerability in this LFI, you know. This is the vulnerability actually for LFI के लिए. बहुत सारी चीजें होते हैं. If you know that LFI vulnerability is this, then you must be know like how to mitigate it and what are the reasons behind it. What are the codes it impacting or affecting this vulnerability. Okay, that you should have idea about it. Otherwise, वो एक normal hacker बन जाता है. But if you know that things, then you are little bit. I don't have also idea about it, but हाँ little bit मुझे थोड़ा फार पता है. वो I am just explaining you here, guys. Okay, so I'm not also pro person. मैं भी सीख रहा हूँ सब चीजें. मेरे को कुछ आता नहीं है. यहाँ पे second things is what again यहाँ पे वही आया है second lab में भी. But मैं यहाँ पे अभी देखो // etc पास wd करता हूँ तो ये ओपन नहीं होना चाहिए. अच्छा हो रहा है. तो क्या है इसमें चेंजेस, कुछ भी तो नहीं है. सोर्स कोड देखते हैं. इन लोगों ने व्हाइट लिस्ट किया है अच्छे से. ठीक है, व्हाइट लिस्ट किया है. स्टिल पास wd फाइल लोडेड हो गई है. कोई बात नहीं. तो ये होता है LFI vulnerability. ठीक है, कैपिटल 3. ओके, LFI CSRF के लिए 3 है. ब्रोकन ऑथेंटिकेशंस के लिए भी, ब्रोकन ऑथेंटिकेशंस में भी 3 लैब है. SST है तो हम लोगों ने देखा. कैप्चा बाईपास देखो क्या है, 2 लैब्स है उस पर. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, कैप्चा बाईपास जब हम लोग करते तो वो लॉगिन ऑथेंटिकेशंस के लिए प्रोटेक्ट करता है. बट इफ इवन देयर इज अ कैप्चा है तो भी उसे बाईपास किया जाता है. ओके, कैसे करते हैं. यहाँ पे 2 लैब है, वहाँ पे आपको थोड़ा अंडरस्टैंड होगा, है ना, समझ में आएगा. एपीआई का भी है एक छोटा सा लैब. मैं आपको एपीआई का बताऊंगा नहीं. यू गो टू नो सॉल्व दिस लैब. आर्टिकल में भी एपीआई vulnerabilities का वॉक थ्रू मैंने दिया है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ना. तो गो टू द hacksaw.medium.com and read that article properly, and then you can do solve the lab. Alright, इसमें कुछ ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें लैब ही सॉल्व करना है. मैं प्रो पर्सन, आई want to solve this lab without taking any help. ये ऐसा कुछ नहीं है. Go to the article, study it first. स्टडी करो, लर्निंग करो, समझो चीजें, देन लैब के ऊपर प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. उसके बाद आपको क्या ब्लाइंडली vulnerabilities को एक्सप्लॉइट करना है, करो. Thousands of programs are available on HackerOne. Go to the HackerOne.com website, register there, and keep it mind कि हम जब ये सब चीजें कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें भी समझनी है. वो आप देखो क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आप जब ये सब चीजें करते हो तो आपको टाइम देना बहुत जरूरी होता है ना. और इजीली ये सब चीजें नहीं मिलती vulnerability, बिकॉज ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोग्राम है वो एक्चुअली लाइव वेबसाइट्स के ऊपर हमें vulnerability ढूंढनी पड़ती है. तो वहाँ पे thousands of people already started hunting over there, and they already found some bugs reported also. तो आपको बहुत कम पॉसिबिलिटी मिलती है बग्स फाइंड करने की. वहाँ पे डिमोटेड बंदा हो जाता है.
If you don't want to demotivate, then go to the Google and search your private bug hunting, you know, uh, bug hunting, Google Doc, bug hunting docs. तो आप यहाँ पे आ जाओ, डार्क डॉट टेक्स्ट के ऊपर जाओ, ये तुम्हारे कुछ डार्क है, गूगल डार्क है, and just copy and paste here. Okay, so you guys will get a lot of websites list in Google के अंदर, और उसमें से कोई भी वेबसाइट्स को जाके ना स्टार्ट करना है फाइंडिंग, फर्स्ट रेट देयर ना, जो भी उन लोगों ने दिया है, रिपोर्ट फिशिंग, सबमिट रिपोर्ट, रिपोर्ट होल्डर में कैसा होना चाहिए, गाइड डिस्क्लोजर गाइडलाइंस, उनकी रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर गाइडलाइंस उनकी खोदो, क्या गाइडलाइन है, व्हाट आर द स्कोप दे गिव यू, व्हाट इज आउट स्कोप and what you should not do, and so many things is posted on that page. So every web applications give different disclosures guidelines. So read it carefully, then start hunting. Okay, but I recommended you ki, when you starting hunting, don't directly start hunting. First learn a things. मिनिमम आपको एटलीस्ट मीडियम लेवल पर वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करना आना जरूरी है, नॉट नेसेसरी टू नो CTF वाले, लाइक शेल करना या सिस्टम को प्रिविलेजेस क्रिएट करना, दैट इज नॉट थिंग्स ऑन द नो you should know. The thing is what you should have idea about how what are the web applications platform, and there and how to take how to do hunting. ओके, ये जो हम लोगों ने देखा, ये वाला कहाँ जाएगा, हाँ, तो ये इसमें से आप ये सब आता है आपको, तो भी ऑल्सो यू गाइस गुड, यू गाइस ट्राई स्टार्टिंग हंटिंग एज वेल, सो ये भी आप कर सकते हो, इससे ज्यादा आपको पोर्ट्स के ऊपर लाभ मिलती है, तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। सो माय रिकमेंडेशन इज वोट ट्राई टू नो गेट अ नॉलेज, स्टडी करना जहां से भी मिल सकता है। पोर्चुगल इज नॉट ओनली द पाथवे और स्टडी मटेरियल हम बोल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेब एप्लीकेशन है, बी वैप भी है, तो बी वैप आप लोग बी वैप के ऊपर भी जा सकते हैं, वो ऑनलाइन हम लोगों का प्लेटफॉर्म भी है, अभी उनका एप्लीकेशन भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू यूजर क्रिएट करो, है ना, विशाल नाम से कर लेते हैं। वन वन लॉगिन, ठीक है, तो सी देयर इज नंबर ऑफ बग्स, HTML इंजेक्शंस है, iframe इंजेक्शन है, LDAP इंजेक्शन है, मेलिंडर इंजेक्शन है, OS कमांड इंजेक्शन है। सो देखो मैंने HTML इंजेक्शन स्टार्ट किया, वल्नरेबिलिटी सेवेरिटी लेवल्स यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं, आई प्रेफर लो फॉर फर्स्ट, हैक के ऊपर क्लिक करते हैं तो सी यहाँ पे आपको इनपुट दे गिव यू डिफरेंट UI, and you guys can try to find vulnerabilities on this web application, तो उससे आपका नॉलेज गेन होता है। लेट मी ट्राई इट फ्रॉम हेलो, नीचे कुछ भी टाइप करते हैं, एंटर तो हेलो, ये H1 टैग यहाँ पे पॉप अप हो रहा, इवन आई कैन ट्राई हियर रेट अलर्ट, इट्स अप टू यू, लोगों ने HTML दिया है, बट मैं यहाँ पर XSS भी ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, है ना, जरा कितना फोन अच्छा मैंने बहुत दूर रखा था, पता नहीं ऑडियो का इशू होता होगा। हाँ, तो यहाँ पे एक्सेस भी हो रहा है, तो गाइस यहाँ पे HTML iframe है, LDAP इंजेक्शन भी है, SSI इंजेक्शन भी है,
एसक्यूएल इंजेक्शन, देखो एसक्यूएल इंजेक्शन से आप कितने सारे एसक्यूएल इंजेक्शन है ना, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन लॉगआउट मैनेजमेंट के ऊपर, फॉरगेट फंक्शंस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव कुकीज के ऊपर है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी है बहुत जगह पे, तो कहाँ कहाँ हम लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं. So you guys will getting idea about how and where that vulnerability may be exist and how to find it. आइडर के ऊपर भी 3-4 मेथड्स दिए हैं. ओके, डीडोस अटैक का भी है यहाँ पे, प्रिविलेज लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन, यूडे लोकल प्रिविलेज एस्केलेशंस, मैन इन द मिडल अटैक्स का भी दिया है, और हार्ड बिल्डर vulnerability तो बहुत पुरानी vulnerability पर था. ओके, स्टिल इट इज हियर. कोड vulnerability SSL2 का deprecated प्रोटोकॉल्स की vulnerability भी दी है. वाह, नाइस. तो ये सब चीजें यहाँ पे दिया है. रेस्ट्रिक्टेड फोल्डर कैसे एक्सेस करना है. हाँ, 403 एरर ना, क्लाइंट साइड एक्सेस, उसको बाईपास हम लोग कर सकते हैं, जो कि क्लाइंट को एक्सेसिबल नहीं होता है, वो फाइल को भी हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं. ओके, तो हेडर में हमें देखो ये फाइल है, एक्सेस हो रही है. लॉग ऑफ एंड ट्राई टू एक्सेस. अच्छा, लॉग आउट करते हैं, पहले किसी कॉपी करते हैं. ओनली ऑथराइज यूजर उसे लॉग इन करता हूँ, मैं लॉग आउट नहीं करता हूँ, इनकॉग्निटो में ट्राई करता हूँ. ठीक है, नो वी कैन नॉट. तो ये वल्नरेबिलिटी को कैसे ये करना है, तो वो भी हमें यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा. मतलब देखो, राइट अप देखो, वॉक थ्रू देखो, या ऐसे फाइल्स को देखना है तो क्या करना पड़ेगा वो भी देखो. ठीक है, वाओ, बूम. देखो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेड. मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो भी मतलब इजीली हम लोगों ने इसे एक्सप्लॉइट किया. सी, व्हाट इफ आई जस्ट डायरेक्टली ओपन करता है आयरन मैं. अच्छा, ये हो रही है अब, कोई बात नहीं. नाइस, नॉट बैड. तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं. सिंपल. क्लिक जैकिंग, मूवी टिकट्स. ओके ओके, तो ये क्लिक जैकिंग का भी वल्नरेबिलिटी यहाँ पे दिया है. अनरिस्ट्रिक्टेड फाइल फजिंग के लिए भी दिया है. ओके, वेब सर्विसेज. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. तो PHP eval फंक्शंस का मिसयूज कैसे करना है, CGI बिन रिमोट कोड एग्जीक्यूशन. ओके, अच्छा, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि PHP 5 जो होता है उसके ऊपर ये वर्क होता है, CGI बिन रिमोट इंजेक्शन. मेटा एक्सपर्ट में एक एक्सपर्ट है जिसका नाम है इंजेक्शन, CGI इंजेक्शन, CGI इंजेक्शन समथिंग. ठीक है, तो मैं MSF कंसोल या मेटा एक्सपर्ट में लिखता हूँ, मेटा एक्सपर्ट CGI इंजेक्शन आर्ग्यूमेंट. ओके, ये उसका मॉड्यूल का नाम है. ओके, देखो ये CGI इंजेक्शन, आर्ग्यूमेंट इंजेक्शन, तो ये PHP की वल्नरेबिलिटीज है. अब PHP बिलो 5, मैं इसे अभी कैसे देखूं. हाँ, राइट राइट, सॉरी, यहाँ पे बिलो 5 वर्जन का जो भी है, 5.3 एंड 5.4, दिस वल्नरेबिलिटी इज एग्जिस्ट ऑन दिस वर्जन ओनली. तो यहाँ पे हम जब देखते हैं एडमिन, ये देखो, ये फाइल को हम लोग जब ओपन करते हैं तो वाओ,
वर्जन 5.5 ये हमें दिख जाता है ना। तो ये वर्नबिलिटीज के ऊपर हम लोग ये ऑक्सिलरी, सॉरी नॉट ऑक्सिलरी, मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं, जिस जो ये एक्सप्लॉइट एक्चुअली, ठीक है। आई आई होप, हाँ यस एक्सप्लॉइट है। तो एक्सप्लॉइट हम लोग यूज कर सकते हैं, रिमोटली हमें आरसी मिलता है, एक्सेस मिलता है ऑन एमएसएफ के ऊपर। तो हम लोग कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन केस लाइक कोई भी वेबसाइट है और हमें पता चल रहा है कि पीएचपी वर्जन 5.5 है, तो यू कैन ट्राई टू टेक डाउन इट और आरसी कर सकते हैं इसीलिए। ये भी यहाँ पर है, बहुत अच्छे अच्छे से यहाँ पे दिए, नॉट बैड। और क्या है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर बहुत इजी, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है, आई डोंट लाइक इट। हाँ बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीआईपीटी के रिपोर्ट राइटिंग के लिए, छोटी छोटी चीजें भी हमें ऐड करनी पड़ती है। और क्या है इंटरेस्टिंग लास्ट में, एक्सरसाइज जी अभी हम लोग ने देखा। हार्ट ब्लड वल्नरेबिलिटी, ये जो सेल चौक वल्नरेबिलिटी हम बोल सकते हैं शायद, मैं भूल गया। वेब सर्विसेज ओपन, हाँ सॉरी एसएसएल सर्टिफिकेशंस के ऊपर ही हार्ट ब्लड वल्नरेबिलिटी आती है ज्यादातर। थी, ये थी, अब मोस्टली नहीं मिलती हार्ट ब्लड वल्नरेबिलिटी। जब हम लोग एसएसएल को स्कैन करते हैं मैपिंग में, तो वहाँ पे दिखा जाता था कि हार्ट ब्लड वल्नरेबिलिटी, जो कि आरसी था, ठीक है, जो कि आरसी था। शेरचॉक वल्नरेबिलिटी इज एक्चुअली फाउंड, वो भी बहुत पुराना था, 2015 में मिलता था शेरचॉक वल्नरेबिलिटी, सीजीआई के ऊपर, सीजीआई फोल्डर्स के ऊपर वल्नरेबिलिटी था, देखा शेल चॉक। शेल चॉक वल्नरेबिलिटी एक्सपर्ट डीपी पे देखते हैं। कर्ल का यूज करके भी हम लोग ऐसे एक्सपर्ट, अच्छा मेरा एक लैब है शेल चॉक वल्नरेबिलिटी के ऊपर, मैं मैं तो भूल गया, बट दाम शायद उसका वन आपके ऊपर जाते हैं। शेल्चा पढ़ना बेटे, शेल्चा पढ़ना बेटे किस पे था। मुझे लगता है शेल्चा पढ़ना बेटे पे रखा है, थॉर पे रखा है, करेक्ट करेक्ट, थॉर पे रखा है, हैक सुडो सुडो थॉर राइट अप। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग हैं आर्टिकल के, ओके, तो उसमें से मैप किया, FTP is not accessible, login page, person found, they just did Darbuster. See, Darb pe they found some folder CGI bin and shells.sh. So, in case if there is a CGI bin folder, and in that folder there is a unique sh file, sh file is if you found that sh file, then it means it may be vulnerable for a shell shock vulnerability, but your servers server shell must, जो शेल होता है ना, शेल वो ओल्डेस्ट वन होना चाहिए। अब ओल्डेस्ट मतलब वो बहुत पुराना वाला वल्नरेबिलिटी है, शेल शॉक वल्नरेबिलिटी ऐसे शेल के ऊपर रहता था, वो होता था। तो हम लोग एक्सटर्नली इस फाइल्स को ट्रिगर करके रिमोट शेल एक्सेस लेते थे। तो यहाँ पर देखो कर्ल का यूज करके भी हम लोग कर सकते थे, लाइक दिस इज वल्नरेबल नो लिंक सपोज, एंड यू कैन डू कर्ल हेडर में, यूजर एजेंट्स में हम लोग कुछ कोड ऐड करते थे, ओके, और वहां पे हम लोग रिवर्स शेल शैडो फाइल, मतलब शेल एग्जीक्यूट करके पास्ट बॉडी फाइल को रीड कर सकते थे, इवन दो लाइक यू कैन रिप्लेस इट
add a reversal as well, so we'll get a reversal also. So if in case CGI bin मतलब CGI bin है and Shilchok vulnerability है, then also you can do RCE. तो बहुत सारी चीजें हैं। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम हम लोग और कुछ ट्राई करेंगे। ओके। कहाँ गया मेरा ये? चलो ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।